پہلے ادھر ہی پاکستان تھا، اس چوٹی پر پاکستان تھا. ادھر سے آواز اذان ادھر سنتے تھے، ادھر سے اذان کرتے سنتے. یہ 71 میں لے لیا. شیر کشمیر کا ہم 3-4 بار گیا تھا. اچھا. ہاں، فاروق عبداللہ ہے، عمر عبداللہ ہے، مگر اس کے برابر تو کوئی کہاں ہو جائے گا، ہے نا. وہ تو بہت نیک. کوئی مریض آتا تھا اس طرح پکڑ کے وہاں لایا، کوئی پھوس کے پانی شانی دعا کر کے دے دے، اسی وقت شفا. میں نے سنا یہاں پر آپ لوگوں کو کوریا چائنا کا بھی آتا ہے ایسے ہی کپڑا. ہاں، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کس کو؟ جو ایسا ہی آتا ہے وہ کوریا چائنا سے آتا ہے. وہ اس کا بھی وہ بتائے نا، اس کا بھی گوشن بتائے نا. اس کو بھی وہی. تو یہ کاپی ہے. ہاں کاپی ہے نا. یہ کاپی ہے. یا یہ طوفان آتے رہتے ہیں اس طرح؟ ہاں ہاں ہاں، اسی طرح آتے رہتے ہیں اللہ کی فضل سے. اور بہت ترقی ہو گیا. ترقی تو کیا ہو گیا، کچھ نہیں ہو گیا. ابھی تو لون پہ کام کر رہا ہے، کیا ترقی ہے وہ. یہ کرگل ہے جو کبھی پورک تھا، تجارت کا ایک ایسا مرکز جو علاقے کی 4 بڑی منڈیوں کے بیچوں بیچ شہرائے ابریشم کا ایک اہم پڑاؤ تھا. وقت بدلا لیکن تاریخ میں رقم نہ مقام بدلے نہ پڑاؤ بدلے. ماضی بعید کا پورگ قرون وسطی میں کرگل بن کر کیا کچھ کھویا اور کیسی نئی پہچان لے کر آیا. آج کی کہانی اسی داستان کا حصہ ہے. ہم لوگ آئے ہیں کشمیر سے. ہاں، یہاں آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے. صدیوں سے جو لوگ کرگل آتے ہیں وہ بلتی مارکیٹ جائے بغیر شاید ہی واپس جاتے ہوں گے. کرگل ایک پڑاؤ تھا مسافروں کا، منڈی تھی تاجروں کی. ایک زمانے میں یہ بازار شہرائے ابریشم کی اہم گزرگاہ تھا. کاشگر، خوتان اور کشمیر سے آنے جانے والے تاجر اس بازار کی زیارت کے بغیر کرگل سے باہر نہیں آتے تھے، کیونکہ اس بازار میں صحرائی سرابوں کی طرح چمکتے ریشم اور تقدیروں کی دھمک میں اضافہ کرنے والے پتھروں کے لیے اس سے بہتر بازار اس علاقے میں شاید ہی کہیں تھا. یہ جو علاقہ تھا یہ صرف ویسٹرن ہمالیہ میں نہیں لیکن گلوبلی اس کا ایک ٹریڈ پوزیشن بھی بہت امپورٹنٹ ٹریڈنگ پوزیشن تھی. جو ہمارا صحرائے ابریشم تھا یہ ایک بہت بڑا سینٹر تھا. یہی آتے تھے جی ہاں، جس میں کاروانز آپ کا ازبکستان سے کاروان آتے تھے، تاجکستان سے کاروان آتے تھے، کرغستان سے کاروان آتے تھے. زنجانگ ایریا جسے آپ چائنیز ترکستان کہتے ہیں، جس میں کاشغر، ارمچی، یرقن وغیرہ کے جو تاجر تھے وہ لوگ یہاں آتے تھے اور یہاں تجارت کیا کرتے تھے. میرا نام حاجی غلام محمد. آپ کہاں سے ہیں؟ میں اختمل کا ہوں. وہ کہاں پر ہے؟ وہ ادھر سے 2.5 کلومیٹر کی دوری پر. کون سی زبان بولتے ہیں آپ؟ ہم بلتی زبان، پرکی زبان، پرکھی بھی اور بلتی بھی اور اردو بھی بولتے ہیں، کشمیری تھوڑا تھوڑا کشمیری بھی بولتے ہیں. یہ جو آپ یہ کام کرتے ہیں نا، یہ گڈیاں ٹھیک کرنے کا، کب سے کر رہے ہیں؟ یہ کم از کم 30 سال 35 سال تو میں نے یہاں اسی کام میں لگ گیا ہے. 30-35 سال. ہاں، اب تو کام نہیں کر سکتے، آنکھ کو کام نظر نہیں آتا ہے. تو آپ کے بچے نہیں کرتے یہ کام؟ بچے نوکری پر ہیں. نوکری کرتے ہیں؟ نوکری کرتے ہیں. کہاں، سری نگر میں ہے یہاں؟ نہیں، یہی ہے. آپ ہمارے ساتھ بات کریں گے کیمرہ پر؟ ہاں، کریں گے بات کیمرہ پر. کیمرے پر کیا کرنا ہے.
कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। दुकान था सिर्फ उधर से नीचे तक, अच्छा, बल्टी बाजार तक था, उधर से इधर बाजार तक। तक था, ठीक। हाँ, थोड़ी सी दुकान था। अब ये बाद में नया बना था, ये असली मेन बाजार था। ये वाला मेन बाजार हम था। पहले मेन बाजार था, अब अभी तो अपो बाजार बन गया है। ये जो कैरावान होता था, कैरावान कंसिस्ट ऑफ 40 हॉर्सेस और 40 कैमल्स, इवन शीप ऑल्सो। साल्ट के लिए खासकर जो इस्तेमाल होता था, शीप एंड गोट्स वर ऑल्सो इन द कैरावान। और कैरावान में सिर्फ 40 लोग होते थे, चाहे वो 40 लोगों का काफिला होता था जिसमें औरतें होती थी, बच्चे होते थे, मर्द होते थे। और इसको हेड करता था एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी जिसे कराकश कहते थे, जो कि हेड आदमी होता था जो उस कैरावान को लीड करता था। एंड दिस वाज अ कैलकुलेशन। और 40 केजी से ज़्यादा ये लोग नहीं उठाते थे। आपने वो सैक्स देखे जिसमें एक में 40 केजी, या हॉर्स बैक पे एक साइड में 20, एक साइड में 20, वो लोग 20 केजी से ज़्यादा नहीं उठाते थे। और इनका मेन सीज़न होता था बिफोर इन जुलाई, as well as जो लास्ट सीजन होता था, it was in September. The concept was July was the after the opening of the treacherous passes. जैसे इनको ससरला क्रॉस करना पड़ता था, जैसे इनको खरदुंगला, जैसे दौलत बेग उल्दिंग जो कि अभी चाइना की तरफ जो बॉर्डर है काराकोरम हाईवे से जो लिंक करता है। क्योंकि हम यहाँ आज खतलान से, जहाँ हज़रत शाहमदान का जो आस्थान आलिया है, हम लोग यहाँ से 800 किलोमीटर ही दूर है। और यहाँ जो आप हुंदुरमन गांव जहाँ आज आप गए, यहाँ से पाकिस्तान देखिए, हुंदुरमन से पाकिस्तान दूर नजर भी आता है। 2 गांव आप वहाँ से देखते हैं। हम भी आज गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं अच्छा। कि ये करगिल अस्करदू रोड खोल दिया जाए। जैसे आपने श्रीनगर कश्मीर में रोड, आपने बारामुल्ला टू गोरी टू पाकिस्तान का रोड, आज़ाद कश्मीर का रोड खोल दिया। देखो ये पुराना दुकान है, पुराने दुकान है ये है। ये पुराने दुकान है। ये मैं भी सोचूं ये मुझे पुराने दुकान क्यों लग रहे हैं, क्योंकि लकड़ी के और मिट्टी के बने हैं। हाँ, लकड़ी और मिट्टी के बनाए हैं। वो सब उखाड़ दिया तो अब ये आ गया। अब ये उखाड़ के अभी सीमेंट बनाना रहा है और बहुत तरक्की हो गया। तरक्की तो क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया। अभी तो लोन पे काम कर रहा है, क्या तरक्की है वो। पहले कोई लोन शोन बिल्कुल नहीं था, हलाल का पैसा का था और हलाल खाते थे। अभी हराम का मिक्स हुआ है, बेबरकत हो गया और क्या करेगा, और क्या है। कश्मीर हो या करगिल या दुनिया का कोई और जीहस समाज हो, वो अपने मुस्तकबिल के लिए अपने माजी को समेट के रखता है। कुरूने वस्ता का दौर तो गया, लेकिन ज़माने की कहानियाँ यहाँ के मुंशी म्यूजियम में आज भी मौजूद हैं। ये मेरे ग्रैंडफादर है, अच्छा, ये मेरे फादर है, ओके। और ये मेरे चाचा हैं। ये दुकान में ही है, क्योंकि हमारी 7 दुकानें होती थी ये सराई में, जो कि हम डिफरेंट एरियाज़ के साथ उन दुकानों का कनेक्शन होता था उनका। और ही हिमसेल्फ वाज द पिटिशनर राइटर फॉर द महाराजा ऑफ कश्मीर, ओनली लॉ नोइंग पर्सन इन दिस एरिया। तो इनका जो हमने, और इनकी जो डेथ हुई 1948 तक। तो ये सारा सिल्कन, जिसके लिए स्ट्रेट को सिल्क रूट पड़ा, और दीज आर ऑल हैंडमेड। सारा कोई मशीन वर्क नहीं है, ऑल हैंडमेड। ये इंपीरियल सिल्क है, शाही जिसे बोलते हैं। ये इकत, ये शाही, ये अगेन है शाही। और ये टसर जो बोलते हैं, ये बाद में डाइज जो है, जो इंडियंस ने इंट्रोड्यूस किए। एट दैट टाइम हॉर्स यूज टू बी द स्टेटस सिंबल। जितना खूबसूरत आपका घोड़ा है, उतना आपका स्टेटस मेंटेन। जैसे आज आप, 17th सेंचुरी के। और आप देखिए, दीज आर ऑल नेचुरल डाइज, ये नेचुरल कलर्स हैं, ये कोई आप इसमें केमिकल डाई या। मोहम्मद साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं खास करगिल के। अच्छा, कौन सी ज़बान बोलते हैं आप? पुरखी ज़बान। पुरखी ज़बान। आप बल्ती बाजार के रहने वाले हैं? हाँ। इस बल्ती बाजार के बारे में आप क्या जानते हैं?
बस्ती बाजार में क्या पहला नीचे था ज़्यादा, बस्ती बाजार असली वो है नीचे वाला, ये है मेन बाजार। बल्ती बाजार के की हिस्ट्री क्या है, तारीख क्या है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर इसलिए इसको बल्ती बाजार बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर बल्तिस्तान से लोग आए थे। बल्तिस्तान के लोग आया था पहले सन 47 से पहला, फिर वहाँ से इधर से नीचे बस्ती वाला है, ये स्कर्दो वाला है, और गिलगिल वाला है, पारिक वाला है, इधर ये पाकिस्तान के लोग है रहता है यहाँ से नीचे। 8 मील का एक पड़ाव होता था जहाँ ये कारवान रुकते थे। आप हुंदुरमान ब्लॉक में गए ऊपर जहाँ वो म्यूजियम, लेकिन उसके नीचे जो सड़क है, क्योंकि उस तरफ जो आपने सड़क देखा या जो हुंदुरमान के नीचे ही आपने जो गांव देखा, दैट इज हुंदुरमान मल। इट वाज अगेन अ कैरवान विलेज जहाँ कैरवान रुकते थे। और उस तरफ जो रोड है जो आपको नज़र आया दरिया के किनारे, जो दरिया सुरू के किनारे जो आपको रोड नज़र आया, दैट वाज द ओरिजिनल सिल्क रूट। वहाँ से जो ट्रेडर्स आते थे, ट्रेडर्स रुकते थे और ट्रेडर्स उसी रूट से यहाँ आते थे। और करगिल में 3 सराइयाँ होती थी, एक हमारी सराई होती थी, एक यहाँ पर एक सराई होती थी जिसको सैलाब बहा के ले गया था। और इन सराई में ये ट्रेडर्स आके रुकते थे। और ये ट्रेडर, जैसे हमारी सराई थी, ये 4 स्टोरीड था, जो सबसे उसका ग्राउंड फ्लोर था, जिसे हम फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर के, दैट वाज फॉर द मर्केंटाइज, एंड द 3rd and 4th फ्लोर वाज फॉर ट्रेडर्स, जो कि एज अ सॉर्ट ऑफ ए होटल था। और वो लोग सिर्फ 1 दिन या 2 दिन नहीं रुकते थे, वो लोग 10-10, 12-12 दिन रुकते थे। मैंने 50 रुपये में नौकरी किया था, 50 रुपया लेता था मैंने महीने में, 50 रुपये। 1963 में मैं टीचर था, 1963 में सिर्फ 50 रुपया था। अच्छा, वो ये चांदी का था, चांदी का 50 रुपया। इतना ये चमड़े का बना हुआ तो होते थे, उसमें पैसे होते थे, उसमें मोहर लगाकर गिनते भी नहीं था, वही देते थे, गिनने पर 50 रुपया आता था। 10 रुपया अगर हम रखेगा, महीने का पूरा सिगरेट पीता था उसी में। 2 पैसे में, 1 पैसे में सिगरेट अभी आता था। अभी तो 100 रुपये में नहीं आता है, 500 रुपया लेता है, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी भी आप कश्मीर में महाराजगंज जाइए या ओल्ड टाउन में वहाँ भी आपको अभी भी आप बोटो बोलते हैं, या चेयर, कश्मीर से चेयर लाया खुबानी, बोट चेयर। तो इसीलिए ये जो, और देखिए मैंने कहा ना, वहाँ जो सेंटर्स हैं, सफ़ा कदल की जो यारकंदी सराई है, स्टिल इट एग्जिस्ट। वहाँ आज भी लोग रहते हैं। करगिल में भी आज हमारे पास यारकंदी फैमिलीज हैं, और उन्होंने शादियाँ की हैं। लेह में भी यारकंदी फैमिलीज हैं। तो वो एक जो कनेक्शन, और कश्मीर में जो आली कदल है, बोटा कदल है, इन सारे एरिया से कश्मीर का एक बहुत बड़ा, और कश्मीर के ट्रेडर्स जो मेनली यहाँ पर पश्चिम ट्रेड के लिए, जिसमें आज भी कश्मीर, हमारे यहाँ शहादात की फैमिली थी, तिब्बत बकाल जो कश्मीर के नामी ग्रामी लोग थे, उनके फैमिलीज आज भी, लेकिन आज पश्मीना के हवाले से, लेकिन आज वो लोग दूसरे आइटम्स में, कॉपर आइटम्स में, या जो कश्मीरी राइस वगैरह है, उन चीज़ों में वो लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन स्टिल द फैमिली एग्जिस्ट हियर। इससे आपको क्लियर कंसेप्ट आएगा ये ट्रेडर्स कौन थे, इनकी नेशनलिटी क्या थी, कहाँ से आए थे। जैसे ये टिबेटियन है, ये उज़्बेक है, ये किर्गिज़ है, अच्छा, ये आपका कज़क है। तो आप देखिए ये जो गोल्डन एंड सिल्वर एम्ब्रॉयडरी में, जिसे कलापोश कहते हैं, कश्मीर में भी कलापोश कहते हैं, वहाँ भी वो कला मीन्स हेड एंड पोश मीन्स सर। और ये कश्मीरी है, आप देखिए, दीज आर ऑल कश्मीरीज। और ये देखिए ये तुर्किश, जी हाँ, टर्किश। फिर आप इधर आइए, दिस वाज अगेन फॉर द एलीट कम्युनिटी, और कश्मीर में अभी भी यूज़ होता है। और दिस विंटर आई वाज इन उज़्बेकिस्तान, इन मोस्ट ऑफ द म्यूजियम्स आई फाउंड द सेम कैप्स ओवर देयर। ये कौन सा नमक है, ये सफ़ेद नमक? ये ईरानी नमक है, ईरान से लाता, ईरान से भी आता है, पाकिस्तान से भी आता है, तबादले में ये भी आता है। बाकी इधर से उधर कोई सामान जाता है, वहाँ से इधर आता है ना। माजी करीब की तारीख में करगिल का सबसे बड़ा संगमेल गुलाब सिंह के सफाक जर्नैल जोरावर सिंह का पुरी को जुलाई 1834 में तस्खीर करना था। ये एक दिलचस्प हमला था जिसकी कोई मुदाफत करगिल से ना हुई, क्योंकि 5000 अस्करियों को लड़ने की इस्तिताअत करगिल के ताजरों में नहीं थी। लेकिन ये बात भी सही है कि तस्खीर करगिल के बाद कई जोरदार मार्के हुए जिसमें करगिल के जंगजू हार गए
اور آخر میں کرگل پر لاہور کی خالصہ سرکار کے لیے کام کرنے والی ڈوگرا فوج نے اپنا قبضہ مستحکم کیا۔ لداخ خود جموں کشمیر کے ساتھ 1834 میں انیکس ہوا آفٹر دا ڈوگرا انویژن، کیونکہ جب زوراور سنگھ نے ڈوگرا اٹیک کیا اس ادروائز لداخ واز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، اس کے بعد یہ جموں کشمیر کا حصہ بنا۔ روسی نژاد ماہر اراضی پال اسٹیپنووچ نظراؤ بالشوک تحریک کے آڑے آنا چاہتے تھے لیکن ناکام ہو گئے۔ اپنی تحریک کے نتائج سے بچنے کے لیے وہ 1925 کے آس پاس کاشغر سے کشمیر کے سفر پر آئے اور کرگل میں بھی ٹھہرے۔ اس نے کرگل کے وجود کا ایک خوبصورت نقشہ اپنی کتاب میں چھوڑا۔ اس نے کرگل کے پہاڑوں کے دامن میں باغیچوں کے بیچوں بیچ ایک زبردست مکان دیکھا جہاں ڈوگرا حاکم رہا کرتا تھا۔ اس نے دریا کے عبور کرنے کے لیے رسیوں کا پل دیکھا جس پر ان کے مطابق چلنے والا ایسے ڈگمگاتا تھا جیسے کوئی نشے میں دھت ہوا ہو۔ اس ماہر ارضیات کے مطابق کرگل جہاں آباد ہے وہ کسی زمانے میں ایک بڑا گلیشر تھا۔ اس نے قصبے میں گارے اور کنکروں سے بنے چھوٹے گھر دیکھے جن کی دیواریں ابڑ کھابڑ اور اندرون ناصاف تھا۔ نظراؤ نے لکھا کہ آبادی مسلمان ہے اور اکثر مرد تجارت کرتے تھے جبکہ ان کی خواتین گھروں اور کھلیانوں کا خیال رکھتی تھیں۔ جو نبز آتے تھے انگلینڈ سے آتے تھے، کریکرز آپ میڈ ان جاپان، میڈ ان جرمنی۔ یہ ہولڈرز اور اگر پینسلز کو آپ دیکھیں ہولڈرز پہ پنچ لاہور انڈیا لکھا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ 100 سال قبل اس روسی سیلانی نے کرگل کو لداخ کے باقی علاقوں کے مقابلے میں امیر دیکھا۔ اونی چوگوں میں ملبوس لوگ یا تجارت کی بدولت یا علاقے میں یورپی سیاحوں کی میزبانی کی وجہ سے اچھا خاصا کماتے تھے۔ اپنے سفر کے دوران اس نے جفاکش بلتیوں کی ٹولیاں کام کی تلاش میں کشمیر جاتے دیکھی۔ اس نے اس علاقے میں کئی ساری کاروان سرائیں دیکھی جہاں کشمیر اور باہر سے آنے والے تاجر رکتے اور تجارت کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے یہ تست اور نار، یہ بہت لائٹ ہے، بہت لائٹ، کیونکہ گھوڑے پہ وہ لوگ جب چلتے تھے۔ تو اب یہ دیکھیے یوٹینسلس، جیسے دس از سارٹ آف اے ٹفن باکس۔ اب سائڈ میں اس کو بند کر لیا، یہ سب یہ کاپر کے ہیں؟ جی ہاں کاپر کے۔ یہ بریانی کے لیے ہے، جیسے آپ پلاؤ بولتے ہیں، بیکاز یہ غلط کنسیپٹ ہے کہ پلاؤ از انڈین۔ پلاؤ تو سینٹرل ایشیا سے آئے ہیں، پلاف جسے ہم کہتے ہیں، اور یہی برتن جو کیروانس کے ہیں تو یہی برتن بالکل، یہ بھی آپ کا سینٹرل ایشین ہے۔ گلے بادام، یہ گلے انار، کیونکہ ان کے میکسیمم جو چاہے قالین ہے یا برتن ہے یا ہمارے گھروں میں اسی طرح کے ہاں برتن بالکل آج بالکل، بھی وہی تو انفلوئنس ہے نا ظاہر ہے۔ سینٹرل ایشیا کا۔ برصغیر کی تقسیم کے دوران ڈوگرا فوج کے افسروں نے گلگت میں بغاوت کی اور پورے بلتستان اور گلگت کو پاکستان کا حصہ بنا دیا۔ اس کے فوراً بعد قبائلی حملے شروع ہوئے اور زوجیبل، دراس، کرگل اور لیہ کے بعض مضافاتی علاقے قبائلیوں کے قبضے میں آ گئے جن کو نکالنے کے لیے ایک لمبی جنگ لڑنی پڑی۔ بھارتی فوج اور کشمیریوں نے شانہ بشانہ قبائلیوں کو دراس سے 16 نومبر 1948 کو نکالا اور بعد میں 23 نومبر 1948 کو کرگل سے ان کو ہرا کر آزاد کر دیا۔ تاریخی سلک روٹ کو 1947 تک یہ ٹریڈ بڑا فلوریشن تھا، اور خاص کر جو میری فیملی تھی، میرے جو فور فادرز تھے، دے ور دا مین ٹریڈرز ان دس روٹ۔ اور اس میں آج دیکھیے تو 1947 تک یہ بہت فلوریشن ٹریڈ تھا، بیکاز اٹ واز ٹو اینڈ فرو ٹریڈ۔ وہاں سے بھی سامان آتا تھا، یہاں سے بھی سامان جاتا تھا، جسے ہم آدان پردان کہتے تھے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اٹ واز مینلی دس بارٹر سسٹم۔ آپ کو پتہ ہے جو لداخ ہے، لداخ اب یونین ٹیریٹری ہے اور یونین ٹیریٹری اب جموں کشمیر سے الگ ہے، مطلب آپ لوگوں کی ایک الگ حیثیت ہے۔ آپ لداخ کے یونین ٹیریٹری، خاصیت تو ہمارے سینئر کے ساتھ ہے۔ ہاں کن کے ساتھ ہے؟ سینئر کے ساتھ ہے، کشمیر کے ساتھ ہے۔ ہمارے خاصیت لے تو الگ تھا، کرگل اور کشمیر تو ایک ہی جگہ ہے، علاقے بھی ایک ہی ہے، ضلع بھی الگ ہے۔ کشمیر شیر کشمیر نے الگ کیا تھا، کرگل ضلع
शेर कश्मीर ने किया था शाह अब्दुल्ला ना। उस वक्त जो इलेक्शन था, इलेक्शन करके वो शाह अब्दुल्ला साहब जीत गया, फिर करगिल के ज़िला अलग किया था। पहला था ये तहसील था, अभी ज़िला हो गया। शेर कश्मीर के ज़माने में तो क्या शुमार था, बहुत बहुत। आपको दौर याद है थोड़ा? हाँ उसके हमको बारे में याद जो है, सुना हो? उस बारे में क्या, हम उसके घर जाता था। उसके घर जाते हाँ शेर कहाँ से? कश्मीर यहाँ के से श्रीनगर? स्नेह ये शेर कश्मीर घर हम 3-4 बार गया था। अच्छा, हाँ शाह अब्दुल्ला साहब, शाह अब्दुल्ला शेर कश्मीर तो क्या शुमार था उसके। तो अभी लड़का भी फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, मगर उसके बराबर तो कोई कहाँ हो जाएगा, है ना? वो तो बहुत नेक आदमी था। 1971 की जंग हुई तो भारतीय फौज ने उन चोटियों को पाकिस्तानी फौज से छीन लिया, जहां से वो श्रीनगर और लेह की शहरा पर असरअंदाज हो सकते थे। जंगों के बीचों बीच दोनों अफवाज एक दूसरे पर तोपे चलाती रहीं। इस शेलिंग की वजह से करगिल के लोग 1996 से लेकर 1998 तक अमलन बंकरों में ही जिंदगी गुजारते रहे। बाद में उन्हीं चोटियों से 1999 की जंग का आगाज हो गया और ये पूरा इलाका एक वॉर थिएटर हो गया। इस जंग के खात्मे के बाद दोनों अफवाज में तोपों के तबादले खत्म हो गए। तब से ये इलाका अमन और चैन की नींद सोता है। करगिल की जंग में 49 गांव और कस्बे से 27,000 लोग बेघर होकर माइग्रेंट हो गए थे, जो बाद में फिर वापस आ गए। जंग 3 दफा हो गया, 3 दफा जंग हो गया। 3 दफा पहले इधर ही पाकिस्तान था, इस चोटी पर पाकिस्तान था। उधर से आवाज़ आज़ान इधर सुनते थे, उधर से आज़ान करते सुनते। ये 71 में ले लिया। 71 के बाद 90 में और हो गया, द्रास में सख्त हो गया और बटालिंग में हो गया। यहाँ तो बम का बिल्कुल गोले चलते थे, बिल्कुल कोई आदमी नहीं रहा, कोई रहा, बाकी सब दूर गाँवों में पनाह ले लिया। अच्छा, वो भी हमने देख लिया। कम से कम इसमें हिंदुस्तान का 1 लाख फौजी मर गया है। इसमें फिर 71 में बहुत मर गया। उस वक़्त कश्मीरी मलिशा भी था, कश्मीरी फौजी था, जम्मू का फौजी था। अच्छा, वो सब मर गया। और आ रहा है बस, ये बहुत तूफान आ रहा है यहाँ से। ये हवा है। अच्छा मैं जाऊंगा, घर जाने के लिए गाड़ी आ गया। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया। कायनात में तब्दीली एक दायमी अमल है, लेकिन आप जानते हैं कि हम जितना भी बदले बुनियादें जूं की तूं रहती है। ये इलाका पुरिक से करगिल हो गया, शहर अब्रेशम की यादें म्यूजियम बन गई, लेकिन इलाके की बुनियादी पहचान कायम है। ये इलाका अब भी काश्तकार ही है। करगिल की रेगिस्तानी दस्तों में काश्तकारी बहुत मुश्किल है। गो की जगहों पर जमीनों को सैराब करने के लिए पानी मैसर है, लेकिन इस इलाके की जमीनों में ऑर्गेनिक मैटर का फुकदान है। बिलमूम यहाँ की जरखेज जमीनें भी फास्फोरस और पोटाश से खाली है, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद काश्तकारी होती है। हालांकि इसका मौसम बहुत मुख्तसर होता है। जू और गुंदम के अलावा बहुत सारी सब्जियां बनती है और कई दहाइयों से हाई यील्ड वैरायटी को मुतारिफ भी किया गया है, जिससे पैदावार में काफ़ी इजाफा हुआ है। लेकिन इस इलाके की खुबानी सदियों से इस इलाके की पहचान बन गई। ए ग्रेड एप्रिकॉट। हाँ, दिस ए ग्रेड है एप्रिकॉट। इसको क्या बोलते हैं? हलमन बोलते हैं। हेलमन। ठीक। तो ये इसका अब आखिरी ये हम हार्वेस्टिंग सीज़न है, तो इसको हम कुछ सुखाते भी हैं, कुछ सल्फ़र और कुछ ऐसे ही बिना सल्फ़र के, और इससे जूस जाम भी बनता है यहाँ पे। ये हमारा जूस है मैम, देखिए ये जूस है लारसी ऑर्गेनिक्स का, लारसी के नाम से। लारसी ऑर्गेनिक्स इन कारगिल। तो ये प्योर है, 100% प्योर, 100% नो एडिटिव्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो कलर्स, आर्टिफिशियल और कलर्स। ज्यादा इनको शुगर की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि ये बिल्कुल, ऑलरेडी बहुत शुगर मीठे होती है, हैं। इसमें ऑलरेडी शुगर होता है। नई तकनीकी तरीके अमल में लाए जा रहे हैं खुबानी की सन्नत से भरपूर फायदा उठाने के लिए। ये सबसे बड़ा कैश क्रॉप है। मैं भी करूँ थोड़ी मदद? करो
कड़वा है ये, कड़वा कड़वा है, कड़वा है। कड़वा है, इसका ऑयल निकलते हैं ना। अच्छा ये एक दवाई है ये रोज खाने। अच्छा, अगर मैं एक एक खाऊंगी ये दवाई के बराबर है। एक दिन में 10 खाओ। अरे क्या, एक दिन में 10 खाओ मैम, एक दिन में 10 खाओ ये। अच्छा ये शुगर के लिए दवाई है। शुगर, कैंसर। पहाड़ों के दरमियान इन खवातीन की कोशिश जारी है और चाहती हैं कि कुछ ऐसा करें जिससे इनका नाम रोशन हो। मेरा नाम परवीन अख्तर है। मैं वीमेन एम्पावरमेंट में सिंस 2009 से काम कर रही हूँ। तो हमने पहले इसमें अवेयरनेस किया हमने कि हमारे यहाँ पे लोकल प्रोड्यूस और ख़ास कर जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस है इस पे हम क्या कर सकते हैं, क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस पे हमने बहुत काम किया। गाँव को जो है शिलिक से बोलते हैं। शिलिक से हाँ, कारगिल टाउन से जस्ट 4 किलोमीटर। हाँ, तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये पूरा, हाँ ये ग्रीनरी जो है यहाँ पे देख रहे हैं। अलग है ना। हाँ, ये पहाड़ कितने सूखे हुए हैं हाँ, और ये एरिया किस तरह से हरा भरा। हाँ बिल्कुल, ये पूरे जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं ये सब जो है एब्रिकॉट के ट्रीज है। अच्छा हाँ, तो गांव वाले यहाँ पे जो निर्भर रहते हैं वो एब्रिकॉट पे ही निर्भर रहते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर फार्मिंग पे ही निर्भर रहते हैं। इलाके की स्ट्रैटेजिक अहमियत की बदौलत फौज की मौजूदगी से इस इलाके के बाजारों में हमेशा चहल पहल रहती है और काश्तकारों की पैदावार को भी अच्छे भाव मिल रहे हैं। फिल वक्त इलाके में दूध की ज़बरदस्त डिमांड रहती है और ये एक अहम सेक्टर बनकर उभर रहा है। इस इलाके की दिफाई अहमियत की वजह से सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन इस वसी रेगिस्तान में बहुत कम आबादी है और लोग दूर दूर रहते हैं। लोग अब भी खच्चर, याक और ज़ो का इस्तेमाल करते हैं नकलो हमल में और बोझ बर्दारी में। ज़ो से आप परेशान न हो, ये गाय और याक के इख्तिलात से पैदा होता है, बिल्कुल खच्चर की तरह, जो घोड़े और गधे की औलाद है। ये था करगिल, माजी बईद का पोरिग, जो असल में कश्मीर का जैसे कोई एक्सटेंशन हो। समाजी, तिजारती और जज्बाती ताल्लुक और हम आहंगी यहाँ के बाजार और घरों से वाज़े है। आम लोग भी इस ताल्लुक का बबांगे दोहल एतराफ़ करते हैं। रेगिस्तानी लद्दाख बहुत सारी नस्लों और तहजीबों का गहवारा रहा है। क्या मुझे और मेरे साथियों को करगिल जैसा ताल्लुक बाकी इलाकों में भी महसूस होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं शहराए अब्रिशम के नक्कोश की तलाश में। इंतज़ार कीजिए हमारी दूसरी मंजिल में एक और कहानी का, माजी करीब में ट्रीटी हाईवे से।